Viewers, the Congress party under Rahul Gandhi's faltering leadership is fast becoming the political equivalent of a guest who overstays their welcome, unwanted, ignored, and increasingly irrelevant. The latest evidence of this ignominious decline is a string of public rejections from erstwhile and potential allies. Yet Rahul Gandhi persists, viewers, undeterred by the cold shoulders and sharp rebukes, peddling sermons on unity while his party stumbles from one humiliation to the next. Viewers, it's a spectacle of delusion so profound that Prime Minister Narendra Modi's parasite label, Parjeevi, he had said, feels less like an insult and more like a diagnosis of the Congress, and one that alliance partners have clearly taken to heart. But undaunted by what happened in Delhi, where Congress stayed defiant, did not ally with the Aam Aadmi Party, Rahul Gandhi has chosen to lecture Mayawati. He suggested that BSP should have joined hands with the Congress and the Samajwadi Party to defeat the BJP in Uttar Pradesh, a state where his own party has been reduced to a fringe player. Viewers, Mayawati's response was swift and scathing. She accused the Congress of arrogance and doublespeak while pointing to its dismal election record. Mayawati's retort was more than a personal jab. It was a public snub to Rahul Gandhi. This reminds us of what Prime Minister Modi had said, the parasite charge on Congress. That, it seems, has stuck deep. PM Modi, viewers, had accused the party of latching on to others for survival, sapping their strength while contributing nothing in return. Viewers, this label has proven prophetic. The Aam Aadmi Party thrives without the Congress in Delhi. TMC rules Bengal without any glitch, and the Samajwadi Party has also gone solo, abandoning Rahul's sinking ship. Viewers, the parasite metaphor by Prime Minister Modi isn't just a catchy phrase. It's a lens through which allies now view the Congress, a party that clings, demands, but delivers little. This is the tragedy, viewers, of Rahul Gandhi's Congress, a party too proud to admit its fall and too blind to change course. बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। आदरणीय बहन जी का जो जवाब है उसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि उनकी मजबूरियां क्या हैं। देश के हर मामले पे भारतीय जनता पार्टी के साथ संसद में हमने उनको खड़े होते हुए देखा है। She has cheated, she has betrayed Dalit cause and started from very humble background, but of course minted money and then now she is afraid of ED, CBI, and that's why acting as a B team of BJP. Let's open this up. Advocate Anmol Pawar, national spokesperson of the Aam Aadmi Party, joins the debate. Professor Dr. Dharmendra Yadav, spokesperson of the Samajwadi Party, with us. I want to begin by asking Anmol Pawar. Anmol Pawar, after what happened in Delhi, I'm talking not about the result but the rift between the Aam Aadmi Party and the Congress. You see, Rahul Gandhi was telling Mayawati how she should have joined hands with the Congress and the Samajwadi Party to defeat the BJP. How do you see that? Good evening, Pranesh ji. Pranesh ji, we have seen that in this assembly elections how Congress worked hand in hand with the BJP, and we have been saying this all along. Their sole purpose was to defeat the Aam Aadmi Party, to weaken the Aam Aadmi Party, and not to secure its own victory. So, आज पूरा देश इस बात को मान रहा है, कल हम कह रहे थे, आज पूरा देश इस बात को कह रहा है. Even the Delhi Congress leaders, we saw that they were proudly declaring that this time their 0 seats were special. I mean, they were they find pride in electoral irrelevance. ये सच्चाई है आज कांग्रेस की. Tehseen,
The Congress has become the BJP's B team. I'm not saying it. Your allies are. Look, the question out here is not about state assembly elections. As Mr. Pawar will rightfully know, that the India Alliance is formed for the national issues. Now, we're only talking about national issues. Personally, I myself have a problem with the Aam Aadmi Party tie-up on the regional level, or even with where my friend Anand Dubey comes from, but the Shiv Sena. I think regionally it should not have happened. And I can accept that they share the same grievances. Let's talk about a national tie-up. And I do believe that nothing is more correct than math. Math is the only scientific barometer that we have. The math, if Mayawati ji would have come in, because of the consolidation of the SC votes towards the India Alliance, of which everyone was a contributor, Uddhav Thackeray ji, Akhilesh Yadav ji, Arvind Kejriwal ji, Rahul ji, Kharge ji, etc., would have made it extremely difficult pan-India wise for the BJP to even get the 240 odd seats and the NDA to cross a majority. I firmly believe this. Plus, across India, the certain number of seats of India Alliance would have gone up. For example, and just bear with me, and this is where I end, of course, the India Alliance did very well in UP. And that is Akhilesh ji and Congress. But even in Maharashtra, where they did well, there were 8 or 9 seats where BSP cut the India Alliance. Look, those would have meant that the BJP would not have the fine print, Tehseen. I'm That's sorry. true. This is, That's no, true. no, no. This is, this is like, celebrating zero. That, this zero was better than the last zero. This is that mindset. I'm sorry to say, this is not about you. This is about a mindset. Look, you can talk about all of this. I am asking you a larger question. Look at the tone in which your allies are talking to you. Shiv Sena, UBT, Samajwadi Party, the Aam Aadmi Party, BSP. अब आप किससे सुनेंगे अब? Imran Khan's party in Pakistan. I think that's unfair to speak about the Congress, and Rahul Gandhi's parents have given their life for this country. I think that's extremely unfair, and I object to that. But let me make 2 things very clear. Mayawati ji was never a part of the India Alliance. Let's be extremely clear of that. She wasn't. And her not being a part, perhaps because the CBI ED cases helped the BJP. But another thing, I do believe firmly, no if, no but, the Congress sooner than later must learn to go alone, particularly in states like Maharashtra where Shiv Sena is there, or Delhi, Punjab where Aam Aadmi Party is there, or the Congress will get hurt. I believe it firmly. Okay. Dubey ji, सुना आपने तहसीन को, वो बोल रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए. आप लोग उनके लिए लायबिलिटी हैं. प्रणय जी नमस्ते. देखिए, सबकी अपनी अपनी भावना है. राहुल गांधी जी चिंतन कर रहे हैं कि हमको सबको मिलकर लड़ना चाहिए. अगर मायावती जी उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ती, अखिलेश यादव जी कांग्रेस मिलकर लड़ती, तो शायद लोकसभा के नतीजे और होते. दिल्ली में मायावती जी अगर कांग्रेस का साथ देकर लड़ी होती तो कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होती. तहसीन भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए. तो ये दोनों विरोधाभास है. नहीं दुबे जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आप लोग तो महाराष्ट्र में एक साथ लड़े, क्या हो गया? महाराष्ट्र में एक साथ लड़े, शरीर से एक साथ थे, मन से एक साथ नहीं थे. हमने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के चेहरे को मुख्यमंत्री जी के लिए आप अनाउंस कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस अपने अहंकार के चरम पर थी. कांग्रेस ने कहा नहीं, हम बड़े भाई हैं. ये आपका पहला जवाब होना चाहिए, लेकिन आपने वार्म अप में समय बर्बाद किया. ये सुनना चाहता था मैं. प्रणय जी सुनिए, तो कांग्रेस कह रही कि नहीं, हम लोकसभा में ज्यादा सीटें जीते हैं, हम बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारा ही होगा, थोड़ा रुक जाइए, आप पहले चढ़िए. उस चक्कर में गाड़ी छूट गई, गाड़ी कोई और लेकर चला गया. तो तहसीन भाई को हम यही कहेंगे. हमारे पास एक मनोचिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रंगनाथन है, और उनसे अगर नहीं हुआ तो फिर हर्षवर्धन जी भी हैं. वो पूरा डायग्नोसिस जो है वो क्लियर है. अब इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा वो बताएंगे आपको. डॉक्टर रंगनाथन, क्विकली. No, as I say, Pranesh, making sense of Rahul Gandhi is as easy as consuming rasam with chopsticks. अगर आप उन्हीं का लॉजिक लें तो दिल्ली में जो मिस्टर दीक्षित हैं, he won by more votes than the difference between Kejriwal and Pranesh ji. So, Mr. Sahib Singh Verma. So, Pranesh Verma. The point I'm making is there are 14 seats in the recently concluded Delhi elections where had the Congress not fought independently, the results could have been quite different. पहले अपने गरीबान में झांक के देखो. But look, the fact of the matter is the opposition was in reality, Pranesh, too many drivers driving vehicles all running on near empty fuel tank. और ये मोदी जी की साजिश है. जब से उन्होंने fuel price hike किए, इनका पेट्रोल खत्म हो गया. Look, just 30 seconds. Let me conjure up an image for you. Rahul was driving an auto that ran out of fuel and was being pushed by the outstretched leg of Kejriwal, who was in his own auto, whose engine had heated up so much, he was sitting on the edge of the driver's seat, making it appear that a ghost was driving the auto.
and Akhilesh was on his bicycle holding the leather strap of Kejriwal's auto scaffolding, hitching a free ride, unaware of an approaching pothole. And Didi was in the passenger seat in Rahul's auto, and when the pothole came, she jumped right out. Yeah, Tehseen, I don't know whether if he takes offense or maybe he agrees with you, because, you know, this is, you're partly right. Now, I want to bring in the Samajwadi Party spokesperson. Dr. Yadav, कांग्रेस पार्टी से आप लोगों की दिक्कत क्या है? क्या राहुल गांधी नेता ठीक नहीं है क्या, या उनसे मतलब क्या अपील उनकी कम हो गई? क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बात बात पे उनसे नाराज हो जाते हैं? पढ़े जी, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, कोई सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसी नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं देते तो हैं, आप लोगों ने बोला कि वो मठाधीश माफिया है, देते हैं आप लोग, सर्टिफिकेट देते हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप बोलिए। तो अभी क्या है, जो मूल समस्या है धरातल पे जो है, जो पार्टी स्टेट्स की हैं, जो प्रदेश स्टेट्स की पार्टियां हैं जहां वो मजबूत स्थिति में है, जो बीजेपी को सीधे टक्कर दे सकती है और बीजेपी को हरवा सकती हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो अगर हम ड्राइविंग सीट पर उन पार्टियों को रखेंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल भी बताया कि कोई ऑटो रिक्शा में है, कोई खींच रहा है, तो ड्राइविंग सीट पे जिसको होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम हो सकता है अपने टारगेट को मीट ना कर पाए। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी और जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। तो हमारा तो जो टारगेट है वो ये है, इस देश को और संविधान को भारतीय जनता पार्टी से बचाने का है, और उसके बचाने के लिए हमने जो भी डिसीजन लिए वो जनता के हक में लिए। अपनी पार्टी के हित को एक बार हमने दूर रख दिया, जैसे हरियाणा के चुनाव को आपने नहीं, तो आप क्या रहे, कांग्रेस ये नहीं चाहती है जो आप चाहते हैं, वो नहीं चाहती कि बीजेपी को हटाए? यही तो सोचने का विषय है। नहीं, आप बोलिए ना, आप खुल के बोलिए, आप यही सोचने का विषय है। अगर चाहती तो करती ऐसा, अच्छा नहीं चाहती तो करती, करने में दिखना चाहिए। आप सोचो कि हम जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे, नहीं वो तो खैर अलग। देखिए, अब आप मोदी जी को कुछ भी बोल लीजिए, ये तो राहुल जी आपके इंडिया अलायंस के अब मेरी बात अपने आदमी है। मेरा एग्जांपल तो ले लीजिए, एग्जांपल समझ गया, ऑटो का एग्जांपल आप दूसरा भी ले लीजिए ना। जैसे मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे देश को, अब अमेरिका में अपने देश के ही लोग बेड़ियों में जकड़े जा रहे हैं, तो दोनों बातों में विरोधाभास है। कोई भी सुनेगा तो ये जान जाएगा कि मोदी जी क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर यादव, नहीं तो अमेरिका में ट्रंप को बोलना चाहिए ये लड़के हैं, गलती हो जाती है, छोड़ देना चाहिए उनको, बेड़ियां नहीं लगाना चाहिए। वो क्यों बेड़ियां लगा रहे हैं ये भी तो बोलिए, क्यों लगा रहे हैं बताइए, क्यों लगा रहे हैं उनको बेड़ियां? अच्छा, अगर आपके घर में कोई इलीगली घुस जाएगा, अगर बिल्कुल जो जिस देश का कानून है, जिस देश का जो कानून है वो उसी से चलेगा। ये माइंडसेट छोड़ दीजिए, आप सुनिए, छोड़ दीजिए कि लड़के गलती हो जाती है। नहीं, हर्षवर्धन जी को नहीं, आप इस पे जवाब लीजिए, मैं समझ गया सर, समझ लीजिए आप इस पे। क्यूबा जो कंट्री है उस पे क्या अमेरिका कानून लागू नहीं होता था? सब कानून लागू होता है। बेड़ियों से लगे हुए नागरिकों के विमान को उतरने नहीं दिया अपने क्षेत्र में। भारत में क्या उतरने दिया? डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि उनको अपमान नहीं सह सकते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपमान सह सकते हैं। अच्छा, वो उतरने दिए। हो गया सर, अब ये इसको जहाज इंडिया में चुनाव का मंच मत बना दीजिए यादव जी, मत चुनाव का मंच मत बना दीजिए। हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की किस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या उनमें से किसी भी बात पर उनको भी पता है कि इस बात का कोई मतलब है? वो सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है, एक विजिट उनकी तय होती है, थोड़ा पिकनिक टाइप के मूड में रहते हैं जब वो रायबरेली जाते हैं या वायनाड की तरफ जाते हैं, तो वहां उनको लगता है कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जिससे वो बात करेंगे और वो थोड़ा कुछ ऐसी बात कह देंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ आ जाएगी। वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में थे, उनको लगा कि मायावती अभी कमजोर हो रही हैं, तो उनके लिए कुछ हम ऐसी बात बोलेंगे कि उनको लगेगा। वो ऐसे मतलब क्यों उनको ये भ्रम है, क्यों कंफ्यूजन है कि जो दलित मतदाता है वो मायावती से टूटेगा तो वो कांग्रेस के पास ही आएगा? और एक तो इस लॉजिक से मैं हमेशा कहता हूं कि डिबेट में हम जर्नलिस्ट लोग भी, जो एनालिस्ट है, वो भी ये करते हैं कि फलाना की बी टीम, फलाने की ए टीम। अरे भाई, राजनीति अपने अपने हिस्से की होती है। अगर आप अपने हिस्से की राजनीति अच्छी कर लेते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत अच्छे से सत्ता पा जाते हैं, 62 आउट ऑफ 70, 67 आउट ऑफ 70। और जब राजनीति आपकी ध्वस्त होती है तो आप अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं, जो 10 दिनों से जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। यही पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी का साहस यह है कि वो लगातार हारने के बावजूद जनता के बीच में है, चेहरा दिखा रहे हैं, तो ये साहस उनका मानना चाहिए। बाकी मुझे लगता है वो जो कुछ भी कहते हैं उनमें कोई अगर बहुत समझदारी भरी बातें कांग्रेस के लोग निकाल पाए तो निकाल सकते हैं, मुझे तो ऐसी कुछ नहीं दिखती उसमें। आरपी सिंह जी, आप लोग तो
बहुत खुश होंगे कि राहुल गांधी को उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं कोई पसंद नहीं कर रहा है। देखिए प्रनेश, इशू इस बात के लिए हमारी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या होगी, व्हाट इज दी कांग्रेस कंडीशन टुडे, एंड देन दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट मायावती जी। मायावती जी sent a message that declared me as a prime minister. You wanted a Dalit face, and you would have guts enough to declare Mayawati ji as prime minister for the India alliance. She could have joined the alliance, but तब तो इनको सूट नहीं करता था, राहुल गांधी को सूट करता कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तब ममता बनर्जी को अपना सूट दिखता था, केजरीवाल को अपना दिखता था, तब मायावती दिखती नहीं थी। अब चुनाव हारने के बाद मायावती दिख रही है, और ये कंडीशन इनकी बाकी राज्यों में भी है। मतलब ममता बनर्जी इनको ठेंगा दिखाती है, इनका एकमात्र एमएलए जीता उसको तोड़कर अपने साथ लेके सागर टीके के अंदर। अमरुदुल्ला ने इनको अपनी गवर्नमेंट में शामिल नहीं होने दिया। वो कहता है, वो कह चुके उनके ट्वीट पे अच्छा लड़ते झगड़ते रहो। तो अच्छा, फिर कैसा समझौता था? दिल्ली के अंदर समझौता था आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब में आप आमने सामने थे। मजेदार बात है, चंडीगढ़ में समझौता था, मोहाली के अंदर आमने सामने थे। मतलब 100 मीटर में समझौता, 100 मीटर में आमने सामने। तो ये सब सूटेबिलिटी वाला काम है इनका, कोई समझौता, कोई आइडियोलॉजी का समझौता थोड़ा। सर, ये डाइवर्सिटी है, आप नहीं समझेंगे। ये डाइवर्सिटी है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। ये हर्षवर्धन जी, डॉक्टर रंगनाथन, आप लोग नहीं। तहसीन भी पजल्ड है, तहसीन भी पजल्ड है। ये सिर्फ 2-3 लोग समझ पाते हैं। आई थिंक उन दोनों में से कोई हमारे पैनल पे नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सम्मानित हमारे गेस्ट हैं, वो जब देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किन दो लोगों की बात कर रहा हूं। बट अनमोल पवार, इफ all of you alliance partners of the Congress or constituents of India have such a problem with the Congress party, why don't you get together and throw the Congress out? प्रणेश जी, आप तो ये बात कर रहे हैं कि भाई शादी भले ही ना हुई हो लेकिन तलाक ले लिया जाए। भाई जब शादी हुई नहीं तो तलाक की जरूरत नहीं है। अब लोग तो ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में क्या गठबंधन था भाजपा और कांग्रेस का। आई मीन दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बोथ द पार्टीज गॉट टुगेदर एंड ट्राइड एवरीथिंग। ऐसे मत कीजिए सर, ऐसे मत कीजिए। आप लोगों ने शादी नहीं की, रिसेप्शन भी किया, पहले पटना में किया, फिर बैंगलोर भी गए, महाराष्ट्र भी गए, वहां पे भी रिसेप्शन किया आप लोगों ने। अब आप मना कर रहे हैं कि नहीं, कुछ अनबन हो गया है, तो अब ऐसे डिस्टेंस मत कीजिए। डॉक्टर रंगनाथन, मैं एकदम शॉक्ड हूं। अनमोल जी क्या कह रहे हैं, शादी के कार्ड छपवाए इन्होंने। इनफैक्ट उसमें भी घोटाला हुआ है, केजरीवाल ने उसमें से 5 करोड़ ले लिए शादी के कार्ड छपवाने में। अनमोल जी ने मुझे स्वयं आए थे मेरे घर कार्ड देने, मैं इनके घर भी गया, खाने पे कोई था नहीं, वो अलग बात है। कह रहे हैं शादी हुई नहीं। अरे भाई, इतना पब्लिक शादी आज तक किसी की नहीं हुई। मेरी भी मेरे घर में हुई थी शादी, आपने तो पता नहीं आलिशान शीश महल में शादी करवाई है, आप कह रहे हैं शादी नहीं हुई। तहसीन, to take his analogy further, बहुत पब्लिक शादी हुई, सब कुछ हुआ, पर प्रॉब्लम क्या था कि ये वाले सोच रहे थे कि शादी हो गई, ये वाले सोच रहे थे लिव इन रिलेशनशिप है। अब इसका एक ही समाधान है, वो जो बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लिव इन वाला लाया, उसी को लगा कर करो, और कोई है ही नहीं इसका समाधान। हर्षवर्धन जी भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो शॉक थे। हर्षवर्धन जी करेंगे क्या? मैं बता रहा हूं, अब बोल रहे हर्षवर्धन जी कुछ किया है ना, स्पेशली कांग्रेस और केजरीवाल ने, इसीलिए लिव इन का भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। नहीं तो आप कहेंगे कि हम तो थे ही नहीं साथ में, हम तो थे ही नहीं, आपको गलतफहमी हुई थी, हम तो यूं ही अच्छे दोस्त थे, हम तो रहते थे बस। यस डॉक्टर रंगनाथन, क्विकली। मैं कह रहा हूं दैट इज व्हाई वी नीड अ यूसीसी। ये जो एक दिन शादी करी दूसरे दिन तलाक किया, एक से शादी करी दूसरे से शादी करी, डिसाइड कर लो पहले। अनमोल पवार, यू हैव द लास्ट वर्ड, 30 सेकेंड्स। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि भाई दिल्ली में जो एक गठबंधन अलग तरह का हुआ था, शायद इसके बाद जरूरत पड़े। और आनंद जी तो पहले कहते थे जी इनका तो कोई चेहरा ही नहीं है, इंडिया अलायंस तो है ही नहीं, और आज कह रहे हैं जी शादी भी हुई थी, कार्ड भी छपे थे, और ये समारोह में भी आए थे। बता दीजिए कहां है। All of this is in lighter vein. Viewers, the point is that look what the Congress has made of itself. It has been ridiculed from all sides. Let's just hope that sense prevails in the leadership. I thank all of you for joining us on India Upfront.